Alright, Assalamu alaikum. Welcome back. And this is our second lab of today from 4 pm of Artificial Intelligence, 23rd of August 2021. So, okay, I'll wait for some students to join and then I'll start in a bit. Alright, so let's begin. We were working on this graph implementation in Prodoc. And we were writing this path that it has been finding, this program. अब इसी को लेकर थोड़ा सा और आगे चलते हैं and let's introduce some other things in it as well. So let's suppose I'm going to introduce another argument in this, that you can move from red to white by paying, let's say, 5 cost. Here 7, here 5, let's say not 5, 2, and let's say here I say 9 is the cost paid. Okay, so if I go by this, then there must be some use of it as well, obviously. So let's start by just asking the edges. अभी मैं राइट वाली चीज़ हटा रहा हूँ बिकॉज दिस वॉज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू गाइज. होपफुली यू हैव बिन वर्किंग ऑन दैट. इसको मैं मिटा रहा हूँ. लेट्स जस्ट assume that how do we do this. So this was the graph that we were working on. Where is that graph? Okay, let me show you the graph first. Yeah, so this is the graph that we have implemented, that red to white there is an edge, red to blue there is an edge, blue to green there is an edge, and white to blue there is an edge. Now I'm just introducing the weights to this graph, right? So let me just insert a text box. Just a simple text box, and let's say 5. I write 5 in here, right? So let's say 5 is the cost from red to white, right? Is that the cost or not? 5 is the cost from red to white. Red to blue, the cost is how much? 7. And red to blue to green, the cost is 2. Blue to green, this one, it's 2. And again the white to blue cost is 9. Okay, so these are the costs that we have seen here. Just for a visualization so that we understand by looking at the image how close or far away we are. So this is our code and this is the graph that we are working on. ठीक है जी. So let's try to run it. अभी तक तो खैर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट ये है कि हमने इसमें जब वेट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स हैं, 2 आर्गूमेंट्स नहीं हैं. फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ द सोर्स, सेकंड आर्गूमेंट इज़ द डेस्टिनेशन, एंड द थर्ड आर्गूमेंट इज़ द वेट फ्रॉम दैट सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब इशू ये है कि एज को आपने 3 आर्गूमेंट्स के साथ डिफाइन कर दिया है. जहाँ जहाँ एज 2 आर्गूमेंट्स के साथ डिफाइन है, दैट इज़ अनडिफाइंड. पाथ प्रॉबेबली कैन बी, बट एज जो है वो डिफाइन नहीं होगा. तो स्टिल मैं पाथ को भी अब डिफ़ाइन कर देता हूँ एक कॉस्ट सी वेरिएबल के साथ. मैं इसको कॉस्ट कह देता हूँ, एक और वेरिएबल कॉस्ट का इसमें यूज़ करता हूँ. सो इफ़ द कॉस्ट इज पाथ इज़ फ्रॉम एक्स टू वाई, द कॉस्ट विल बी व्हाट? कॉस्ट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू वाई की अगर एज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ कोई कॉस्ट होगी. लेट्स कॉल इट C1. सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू C1. कॉस्ट इज़ इक्वल टू C1. अच्छा, अब 1 मिनट के लिए सोच के बताएं मुझे कि अगर पाथ x टू y एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट द एज डायरेक्टली एग्जिस्टिंग, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द टोटल पाथ? कैन यू टेल मी दैट? ऑलराइट, सो
here the cost is essentially C1. ठीक है, द कॉस्ट विल बी समथिंग जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, बिकॉज दिस इज C1 is an independent variable. What is a more important thing here is that we will not be interested in what the distance is here. The cost here is going to be the cost here same. या जो वेरिएबल आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ यूज़ हो जाएगा, बिकॉज पाथ एंड एज इन दिस सिनेरियो इज़ नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. ये आप ये कह रहे हैं कि पाथ एक्स से वाई का एग्जिस्ट करेगा अगर एज एक्स से वाई की एग्जिस्ट करती है, तो जिस कॉस्ट के साथ एक्स से वाई की एज एग्जिस्ट कर रही होगी उसी कॉस्ट के साथ आप पाथ भी लिख देंगे. बट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट की, तो जो एज आपको मिलेगी इसकी कॉस्ट होगी C1 लेट से, तो एक सिंपल वेरिएबल में ले रहा हूँ, और इसकी कॉस्ट होगी C2. तो आपका जो टोटल कॉस्ट होगी विल बी इज़ C1 प्लस C2. रिमेंबर कि इसके अंदर इक्वालिटी की साइन हम यूज़ नहीं करते, बल्कि लिखते हैं कॉस्ट इज़ C1 plus C2. So this is how you can calculate the path cost as well. So let's have a dry run or an implementation of this. ठीक है, so first of all हम देखते हैं अपने ग्राफ को और फिर implementation चेक करते हैं. Let's see if our implementation is correct or not, or is there any issue regarding that. Right, so let's say कि I look for the path from red to green and what is the cost, वो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ. x मैंने दे दी कॉस्ट, सो मैं इसको एंटर करता हूँ. इट्स सेइंग x इक्वल टू 9. रेड से अगर आप ग्रीन पर जाएंगे, रेड से ग्रीन पर अगर आपने जाना है तो 7 कॉस्ट ये आ गई, और ब्लू से ग्रीन जाएंगे 2, 7 + 2 is 9. बट देयर इज़ अनदर आंसर टू दैट. तो मैं सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ और मेरे पास जवाब आता है 16. You can go from the red to white 5 and then white to blue 9. This is 14 and 14 plus 2 is 16. सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ एंड दैट्स फॉल्स, के इसके अलावा कोई और रास्ता एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसी तरह मैं किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन का पाथ मांग सकता हूँ. रेड टू वाइट 5 कॉस्ट पे करके भी आप जा सकते हैं, विच इज़ द डायरेक्ट लिंक हियर, एंड देन दैट्स इट. इसके अलावा किसी और पाथ से आप नहीं जा सकते. राइट, सो वाइट से लेकर हम लेट से रेड तक जाना चाहते हैं. इट इज़ अ वन स्पेशल केस, सो इसको ज़रा देख लीजिएगा फोर से. सो इट्स सेइंग फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा वाइट से रेड. वाइट से रेड जाने के लिए कोई पाथ नहीं है, इसलिए इसने डायरेक्ट फॉल्स दे दिया कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको रखने से पाथ वाइट रेड ट्रू हो जाएगा. राइट, so this is how you can incorporate paths as well as costs of paths in your program. So इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ. कॉस्ट तो मैं लिख ही रहा हूँ खैर साथ साथ, लेकिन राइट वाली चीज़ को मैं ज़रा अगर इनकॉर्पोरेट कर दूँ सो दैट आई नो कि मेरे पास लास्ट चीज़ आई है x, एंड यहाँ पे कॉस्ट इज़ जस्ट अ कैलकुलेशन. सो वो चीज़ प्रिंट नहीं हो रही. जो चीज़ प्रिंट मैं करवा रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ, that I need to write x लिख दिया मैंने ऊपर, और नीचे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल y लिख देता हूँ. आई थिंक जस्ट सो आई शुड बी ऑन द सोल्यूशन देन. और यहाँ पर मैं सिर्फ इसके साथ भी y लिख दूँ. आई थिंक सो लेट्स ट्राई एंड सी इफ दिस थिंग इज़ वर्किंग or not. Obviously कैसे काम कर रहा है, this is up to you, and it's a very interesting thing if you try and have a dry run of it. Obviously you can't do everything in this lab, so मैं वही चीज़ पूछता हूँ दोबारा इससे. ये वाला now it's see कि मुझे ये पाथ भी बता रहा है कि the cost is 9, but when you go from red to blue to green, red to blue to green, the cost will be 9. सेमीकोलन में प्रेस करता हूँ, it's saying red white blue green 16 cost, red to white to blue, blue to green 16, and then no other solution here as well. So red to say white अगर मैं जाता हूँ, या red to blue अगर मैं जाता हूँ, तो let's say कि क्या क्या solutions हैं मेरे पास. So 7 कॉस्ट पे करके भी जा सकता हूँ अगर मैं रेड से डायरेक्ट ब्लू पर जाऊँ. अगर मैं रेड से वाइट और वाइट से ब्लू पर जाता हूँ तो आई विल हैव टू बी पेइंग 14 कॉस्ट. सो इस तरह से आप अपनी चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पाथ जो है वो कितने कॉस्ट के थ्रू लेकर जा रहा है. सो यू कैन प्रिंट ऑल ऑफ द कॉस्ट्स दैट यू हैव
here. And obviously we have been working in theory classes on these things as well. We have been calculating different costs, and we are looking for the shortest paths in our program in a graph, right? So this is how you can implement this thing. ये एक हो गया इसका ग्राफ, कि भाई आप ग्राफ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे थोड़े से और आगे बढ़ते हैं और हम एक नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ द मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ डू वी, इस चीज़ को मैं बंद कर रहा हूँ, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट अ सर्टन, how can we implement a certain 8 puzzle problem. If you remember an 8 puzzle problem, let me show you what an 8 puzzle problem is, और फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं, right? So this is what an 8 puzzle problem looks like. This is its what do you call it, start state. इस प्रॉब्लम को भी हमने प्रोलॉग में भी इम्प्लीमेंट करना है, एंड दिस इज़ योर गोल स्टेट. सो लेट्स से कि 8 पजल प्रॉब्लम में आपने लिखा कुछ इस तरीके से है कि देयर आर दीज नंबर्स, राइट, 8 6 3 2 1 3 4 5 6 7, ये आपने लिख दिया, और आपकी जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपकी गोल पोजीशन है. आप चाह रहे हो कि आपकी पोजीशन इस तरह की हो जाए, जबकि अभी आपकी पोजीशन स्टार्ट स्टेट जो आपको नज़र आ रही है उस तरह की है. सो ये आपकी गोल पोजीशन है, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है. अगर आप चाहें तो इनके नेम्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप एक 2 डायमेंशनल एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूज़ करते हुए आप एक 8 पजल प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा ही आसान है. इसको रिप्रेजेंट आप इस तरीके से करेंगे कि, एक मिनट मुझे दें ज़रा. यस, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेट्स से कि एक फैक्ट डिफ़ाइन करता हूँ, स्टार्ट या करंट लिख देता हूँ, करंट स्टेट, करंट पोजीशन ऑफ 1 इज़ वेयर. 1 कहाँ पर है? ये रहा 1 2 पर. पहले मैं रो नंबर दे देता हूँ, फिर कॉलम नंबर, यानी 2 1 पर है. सो इट्स ऑन 2 1. इसी तरह मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन करता हूँ 2 की, तो इट इज़ 2 3. इसी तरह से मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन करता हूँ 3 की, एंड दैट इज़ 1 3. इसी तरह से मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ 4 की, विच इज़ 1 1. इसी तरह से मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन करता हूँ 5 की, विच इज़ 1 2. इसी तरह से मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन करता हूँ 6 की, विच इज़ 3 2. इसी तरह से मैं करंट पोजीशन डिफ़ाइन करता हूँ 7 की, विच इज़ 3 3. and then the current position of 8 is 2 2. ठीक है. नाउ ये करंट पोजीशंस हो गई. अब मुझे गोल पोजीशन भी इनकी डिफ़ाइन करनी है कि भाई 1 की गोल पोजीशन क्या है. 1 की गोल पोजीशन, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एज 1 की गोल इमेज है, गोल पोजीशन है जी 1 2 2. सिमिलरली गोल पोजीशन of 2 is 1 3. Goal position of 3 is 2 1. Goal position of 4 is 2 2. Goal position of 5 is 2 3. Goal position of 6 is 3 1. Goal position of 7 is 3 2, and goal position of 8 is 3 3. ठीक है. So these are the goal positions. अब मैं एक चीज़ डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको कहा जाता है मैनहट्टन डिस्टेंस.
मैनहट्टन डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ टाइल फ्रॉम इट्स गोल पोजीशन। एक टाइल का अपने गोल से दूर होना इज़ नोन एज द मैनहट्टन डिस्टेंस, कि वो कितना दूर है अपने गोल से। तो मैं जैसे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको फिनिश भी हम करते हैं होपफुली। तो लेट्स से कि मैं एक रूल बनाता हूँ, मैनहट्टन डिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, कहीं से कोई किसी भी नोड का देख लें, 3 को देखें, 4 को देखें, 5 को देखें, 9 को देखें, व्हाटएवर, 8 को देखें, तो उसका मैनहट्टन डिस्टेंस होगा जितना भी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि m विल बी इट्स मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैं इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूँगा? आई विल अगेन यूज़ द इफ एल्स कंडीशंस, इफ कंडीशंस इन दैट आई विल से दैट लुक फॉर इट्स करंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसकी करंट वैल्यू आ जाती है ए बी, एक्स की करंट वैल्यू आ जाती है ए बी, फॉर एग्जांपल 6 की है 3 2। तो मैं कहूँगा अच्छा इसकी अगर ये करंट ये है और इसकी गोल में कह देता हूँ सी डी है, ठीक है, गोल इसका है सी डी, यानी कहीं से कहीं आप जा रहे हो और कहीं से कहीं उसकी उसकी गोल पोजीशन है। तो अगर ऐसा होता है तो आपने इसका डिस्टेंस विच इज़ m, जो कि मैं कह रहा हूँ, विल बी a माइनस सी, यानी कि उसकी रोज़ का डिफरेंस, कितनी रोज़ दूर है वो उससे, ए एंड सी आर रोज़, कि भाई असल में ये कहाँ पर है और उसकी रोज़ से कितनी दूर है, प्लस कि असल में ये है किस कॉलम में और उसका कॉलम कितना दूर है, यानी कि डिफरेंस ऑफ कॉलम्स में इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए ये शो कर सकता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना है। जस्ट इसमें एक इशू है कि सम टाइम्स हो सकता है कि इसकी करंट पोजीशन छोटी हो, यानी ये पोजीशन 1 पर है जबकि इसको पोजीशन 2 पर होना चाहिए। तो जब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा। तो जस्ट इस चीज़ को एक्यूमुलेट करने के लिए, इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैथमेटिक्स में भी आप लोग जानते हैं, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन। कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देना। तो a माइनस बी या b माइनस डी जो भी है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रखी जाए, ये मैं मांग रहा हूँ इससे। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ये इसका क्या जवाब देता है। दिस इज़ अवर प्रोग्राम। सो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कितना दूर आपको लगता है 2 है अपनी पोजीशन से, सो आई विल आस्क मैनहट्टन वैल्यू ऑफ 2 कितनी है। लेट्स से मैं m कह देता हूँ यहाँ पर भी इसको, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 2 की मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है? तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इसका मैनहट्टन डिस्टेंस है 1 कॉलम का है, ठीक है, रो के 1 रो का फ़र्क है, कॉलम सेम है, इसका मतलब है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ एक का फ़र्क आएगा। सो द डिस्टेंस एज यू सी इज़ 1। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 का क्या डिफरेंस है, तो एज़ यू कैन सी कि 5 एक कॉलम भी दूर है, 5 को एक्चुअली इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में होना चाहिए जबकि ये सेकंड में है, और ये एक रो भी दूर है, इसको सेकंड रो में होना चाहिए जबकि ये फर्स्ट रो में है। तो द डिफरेंस इज़ 1 2 टाइम्स, यानी कि 3 माइनस 2, द कॉलम डिफरेंस इज़ 3 माइनस 2 विच इज़ 1 and the row difference is again 1, so 1 plus 1 is 2. The Manhattan distance of 5 is 2. So similarly you can calculate the Manhattan distance of every number except 8. 8 का Manhattan distance हम यहाँ calculate नहीं कर पा रहे हैं. Why not? Let's see. 4 का calculate हो रहा है? Yes, 4 is 2 columns away or 2 blocks away. What about 1? 1 is 2 blocks away as well, right? What about 2? 2 हम देख चुके हैं. 3 is 3 blocks away, right? 4 चेक कर चुके हैं. 5 is 2 blocks away, हम ये भी देख चुके हैं. 6 is 1 block away, हम ये भी देख चुके हैं. 7 is 1 block away, हम ये भी देख चुके हैं. सही है. 8 में ये फॉल्स दे रहा है. 8 का मैनहट्टन डिस्टेंस से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा. व्हाई डू यू थिंक इज़ दैट? क्या इशू किया है हमने प्रोग्राम में? 8 का गोल इज़ 3 3, करंट इज़ 2 2. अच्छा ये सी यहाँ पे n और t की वैल्यू में थोड़ा से आगे गलत करके हम इस n t. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैनहट्टन डिस्टेंस. मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब ये है कि टोटली कितना दूर है एक सर्टन नंबर अपनी पूरी लोकेशन से. दिस इज़ द फार्मूला फॉर दैट एंड दिस इज़ द होल प्रोडक्ट कोड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैनहट्टन डिस्टेंस
ऑफ एवरी ब्लॉक, ठीक है। सो इसी की एक्सटेंशन और इसी के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट लैब के अंदर भी। अभी आपका काम ये है कि ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है, इसमें ये तो आपने काम किया है, मैंने काम किया है 8 पज़ल का, यानी कि एक ऐसे पज़ल का जो कि 8 नंबर्स पर काम कर रहा है। लेट्स सपोज़ कि ये 8 पर नहीं बल्कि मैं 15 पर कहता हूँ आपको ये काम करें। द लैब टास्क फॉर यूज़ दैट कि देयर आर 15 नंबर्स एंड 1 ब्लॉक, उसके ऊपर आपने काम करना है। यानी कि 15 भी है, 14 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। यानी कि इस 4x4 ब्लॉक के अंदर एक स्पेस है और बाकी सारे नंबर्स हैं। उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना हो। So work on that. I'm just leaving the lab here of today's. I will hopefully start the class of next class of artificial intelligence will be in on Thursday, जिसमें हमने एक क्विज़ भी लेना है। रिमेंबर कि उस क्विज़ के अंदर लैब से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाएंगी। असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, असाइनमेंट 2। यू विल बी सबमिटिंग दैट असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। 29 अगस्त आई थिंक उसकी लास्ट डेट है। एंड प्रेजेंटेशंस के मैं टॉपिक आपको दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ डिटेल की प्रेजेंटेशंस आपने किस तरह से देनी है। सो जो लास्ट क्लास हमारी होगी 26 को, जो सेकंड सेशन की हमारी क्लास होगी, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशंस जो हैं वो लेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, यू कैन ईमेल मी और सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। वी विल बी इन कम्युनिकेशन and in the next class there will be a quiz and then there will be a presentation. So thank you very much, see you in next class.